Methodology add-on course welcomes you all in first session of day 10. I would like to invite Ms. Ragini Pyasi ji to introduce our resource person of first session to our participants. Punctuality is not about being on time. It's basically about respecting your own commitments. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to all of you present here, respected teachers and fellow participants. Thank you for having me. Myself, Ragini Pyasi. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today. She is the woman of virtue and simplicity and a living inspiration to the young ones. We are so lucky that she really found a way to be with us today, despite of the distance and her hectic schedules. Our speaker is holding an MA and PhD in economics. Along with she has a degree of MBA and qualified NET in management in 2012 with 25 years of experience in teaching and administration. She is the gold medalist for the first merit in Nagpur University in post-graduation in economics and for highest marks in econometrics subject in post-graduation in economics. She is the resource person for delivering most relevant lectures in refresher and orientation programs, and also she is the resource person in State Council of Educational Research and Training. 31 research papers and articles in national journals are published to her name. Furthermore, 4 books on social contemporary issues with 7 papers are published to our speaker's name. She has bestowed with title of 2 patent, 5 copyrights under digitalization by Copyright Office of Government of India. She has conveyed 20 keynote addresses and plenary talks in national and international seminars. Beyond academia, she has a hand in 52 national and international seminars or conferences. Over and above, she is the educational counselor for career counseling for aspiring youth in Doordarshan Kendra, Raipur. Exceeding all this, our speaker is the member of more than 15 boards of numerous universities, colleges, committees, and councils. Notably, she has awarded with 11 awards for her academic pursuits. Ultimately, it's my privilege to welcome such a renowned scholar and a researcher whose life's work has significantly contributed to economics and sociology. Please join me in extending a warm welcome to Professor Raksha Singh ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Yes. मैम थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, 5 मिनट लेट स्टार्ट कर सकते हैं मैम? Okay, sure, no problem. Thank you so much, ma'am. So then, when you'll ask me, then I'll start. Okay. Yes, ma'am. Yes, sure. Right. Students, how they observe the biodata or if they do any work. But Ragini, what I feel that you are a good speaker. So if till now you have not discovered these things about you, it's like a very good thing. And in future also, you must participate in debate or in quiz because your speaking skill is better. And if you'll choose this as a career, definitely you are going to excel in your field. Now I'll start my presentation, which is before that I would like to ask few questions from the students that whether they know the difference between the qualitative and quantitative research methodology. Yes, student. First I down the screen, then I'll ask you. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में आप लोगों को पता है कि क्या होता है? किसी ने हाथ रेज किया है? रवि. असुएश, क्या स्टूडेंट्स इंटरैक्ट कर पाएंगे या उनके पास ऑप्शन नहीं है इंटरैक्ट करने का? मैम थोड़ा माइक का इशू है क्योंकि मैं स्पीकर ऑफ करना पड़ता है.
दूसरी चीज, क्या आपने इन लोगों को मैंने जो वीडियो दिया वो सबको सेंड कर दिया है? यस मैम, शेयर कर दिया। हाँ, क्या बच्चों ने देख लिया है? या आप पूछ सकते हैं एक बार? यस मैम, अभी देखा नहीं है तो अभी देख लेंगे मैम। हाँ ठीक है, जब मैं प्रेजेंटेशन के समय बोलूंगी तब देख लेंगे उन लोग। यस मैम। ठीक है, ओके, आप अपना माइक बंद कर लो। आप बताएंगे मेरा पावर पॉइंट आपको शो हो रहा है या नहीं? एंड अगेन मैं स्लाइड शो में डाल दूंगी तो मुझे ये नहीं दिखाई देगा कौन देख रहा है कौन नहीं। और अगर मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। So generally there are two types of method. Like my presentation will go in this form. First, I'll be taking the concept, then what is qualitative and quantitative. Then I'll give you brief about the mixed method and finally about my presentation. That today I'll be covering on the observation method. As you all know, because we study statistics, it is all about the data. And what is basically statistics? Why we learn all the tools or the techniques of statistics? Because if we collect the data and if we are not going to analyze in a proper way, the way we want to get the results out of it, जब कोविड आया, अभी फिर से हमें पता लग रहा है कि कोविड का वेरिएंट जो है वो काफी स्ट्रांग है एंड केरला से स्टार्ट हो गया एंड इन एवरी स्टेट्स हमें कुछ ना कुछ केसेस सुनाई दे रहे हैं। तो सबसे अर्जेंट हमारे लिए कौन सी डेटा होगी? फर्स्ट, कि कैसे केसेस आ रहे हैं, क्या ये वाकई अगेन डिफिकल्ट सिचुएशन है, वेदर इट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस और नॉट। क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता लगेगा तो हम फिर से केयरफुल कभी नहीं होंगे। और अगर हमने डेटा को गलत एनालिसिस किया, एनालाइज किया, तो हमें ये कभी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम कभी रिजल्ट्स वैसे नहीं ला पाएंगे। इसलिए डेटा को, जो भी डेटा हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, या जैसे न्यूज में हम देख रहे हैं और उसको अगर हमने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और अपने बिजनेस में या फिर अपने रियल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाता है। इसलिए डेटा का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फ्रॉम द एंगल ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम द एंगल ऑफ हेल्थ प्रैक्टिशनर, from the angle of an individual, from the angle of politician, because for everybody data is available and if we'll interpret in a right direction, we'll get a better results in our life. So हमें डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कोविड का कहा आपको, जब कोवैक्सीन इंडिया में बन रही थी तब लोगों को, इंडियन पीपल को बिलीव नहीं था कि जो भारत में वैक्सीन बन रही है वो हम सभी के लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए इनिशियली लोगों ने उसको बहुत यूज नहीं किया, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन इंडियन मेडिकल ऑफ साइंस की तरफ से हुआ, रिसर्च एंड साइंस की तरफ से, तब लोगों को बिलीव होने लगा कि नहीं, भारत भी कोई वैक्सीन बना सकती है। इसलिए हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, दैट रियली डिपेंड्स। और अगर इसका क्लासिफिकेशन और एनालिसिस प्रॉपर नहीं होता है तो हमको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। बेसिकली जो डेटा है हम जो भी कलेक्ट करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, द अदर इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, इसके शब्द में ही क्वालिटी आता है, तो ये डेटा कहते हैं कोई नंबर्स नहीं होते 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नहीं होंगे। वील हैव टू कंपेयर एवरी टाइम। दिस टाइम हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कोविड वेरिएंट पहले आया अभी आया, कौन सा खतरनाक था, पहले वाला कि अभी वाला? अगर हम इस वे में कंपेयर कर रहे हैं तो दीज डेटास, लाइक हाउ वी आर कंपेयरिंग, दिस मेथड विल बी नोन एज क्वालिटेटिव। और अगर हम क्वांटिटी में देखेंगे कि उस समय कितने लोग मरे, कितनी फास्ट वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, हमने एक एनालिसिस निकाली कि एक दिन में 10% लंग्स इफेक्ट हो रहा है, दूसरे दिन में 25% हो रहा है, 30 days 40% है ना। इफ वी आर इंजेक्टिंग सम मेडिसिन्स, ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है इन्फेक्शन। इफ वी आर कंसिडरिंग एंड टेकिंग दिस टाइप ऑफ डेटा, लाइक वी आर मेजरिंग थिंग्स, देन वील से कि हमने जो डेटा लिया है वो क्वांटिटेटिव है। इसीलिए क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव हमको इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है।
जनरली अभी जो ट्रेंड चल गया है इसमें सोशल साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अब हो गया है कि जब तक हम उसमें कोई मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट नहीं लगाते हैं, हमें लगता है कि दिस रिसर्च मेथडोलॉजी इज नॉट गुड। बट ये गलत है। एक्चुअली अगर हम देखें और रिसर्च देखें तो मैक्सिमम रिसर्च जो है हम लोगों की वो क्वालिटेटिव डेटास पे डिपेंड करती है। इफ वी विल कंपेयर, क्वालिटेटिव इज रियली डिफिकल्ट देन क्वांटिटेटिव। लेकिन कैसे होता है, ट्रेंड चल गया, बेल बॉटम का ट्रेंड चल गया, या फिर लहंगों का ट्रेंड चल गया, एंड वी ऑलवेज, द नॉर्मल पब्लिक ऑलवेज गो विद द फैशन। हम फैशन के अकॉर्डिंग मूव करने लगते हैं, तो हमें लगता है यही सही है। इसलिए अभी ऐसा होने लगा है कि लोगों को लगता है कि अगर हमने उसमें कुछ ग्राफ दिखा दिए, हमने उसमें SPSS लगा दिया या R मेथड से कर दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर से यूज करके, if we are analyzing, that will be more perfect, more accurate, and people will say wow, क्या आपने रिसर्च किया है। बट ऐसा नहीं है। यही समझाने के लिए दोनों एस्पेक्ट्स को मैंने स्टार्टिंग में लिया है। आप कोई भी रिसर्च मेथडोलॉजी को चूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी के एस्पेक्ट को दिखाएगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। जैसे क्वांटिटेटिव में क्या होगा, आपको पता है कि आप जाएंगे, आप पूछेंगे कितनी इनकम है, 10 लोगों ने बोल दिया 10,000, 10 लोगों ने बोल दिया 5,000, 15 लोगों ने बोल दिया 20,000। तो आपके पास क्वांटिटी में नंबर आया, आपने उसको फॉर्मूले में लगाया, यू विल गेट द मीन इफ यू आर टेकिंग मीन। तो ये बड़ा आसान है सॉफ्टवेयर में। बट इफ यू आर गोइंग फॉर क्वालिटेटिव, लाइक आपको क्वेश्चन पूछना है जाके कि जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं उससे वाकई क्या वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं। तब आप, चलिए आपने मान लिया, आपने क्वेश्चन, आपको रिसर्च आपका क्लियर था और आपको ये मालूम था कि मुझे पता करना है कि दिस मच इनकम इज सफिशिएंट फॉर देयर for their standard of living, or whether they are able to live their life comfortably or not। ये आप रिसर्च करना चाहते थे। इसके लिए आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा कि भाई आप इतना कमाते हो और खर्चा कितना करते हो, ये एक मेरा क्वेश्चन होगा। तो अगर खर्चा उनका कम होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई कुछ सेविंग्स भी हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि सफिशिएंट इनकम है। क्वालिटेटिव के लिए आप इतना बेसिक तैयार होके जा सकते हैं। क्वांटिटेटिव में तो आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चनियर रहता है, आपको जाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें डेटा डालनी है, आपको लाना है, सॉफ्टवेयर में डालना है, एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी। क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, इट इज वेरी लाइक यू विल हैव टू क्रिएट क्वेश्चंस इन दैट नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको देन एंड देयर पता होना चाहिए कि इसने ऐसा जवाब दे दिया तो मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप फील्ड से 4 बार लौट के नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो डेटा लेता है लोगों से, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो गया और उसने पूछा, आपके पास क्वेश्चन तैयार था कि भाई आप कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो, और आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, अगर सेव कर रहे हैं तो मतलब पैसा तो बच ही रहा है। आप गए और आपने पूछा आप कितना कमा लेते हैं और खर्च कितना करते हैं, एंड वही दैट पर्सन रिप्लाइज मैं नहीं कमाता हूं। अब आपके पास तो क्वेश्चन ही नहीं, आप तो यही क्वेश्चन तैयार करके गए थे। अब आप ये तो नहीं सोचोगे मैं लौटूंगा अपने गाइड से पूछूंगा कि अब मैं क्या करूं, तो कितने बार आप आओगे जाओगे, इतना फील्ड ट्रिप पे तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा जाना, खर्चा भी उसमें उतना ही होता है। आपको उस समय हर एंगल से पूछना आना चाहिए। अच्छा आप खर्चा नहीं करते हैं तो दिन में कितने बार खाना खा लेते हैं, ही विल रिप्लाई 2 बार तो मिल जाता है। अच्छा 2 बार कैसे मिलता है जब आप कमा नहीं रहे, तो वो बोलेगा मैं आंगनवाड़ी में जाता हूँ। आंगनवाड़ी में जाती ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम आंगनवाड़ी में जाते हैं तो सुबह का नाश्ता उन लोग हमें दे देते हैं, और दोपहर में भी खाना, क्योंकि बच्चों के साथ में जाती हूँ। अच्छा तो आपने ये क्वेश्चन आपका मतलब आपको क्या अब फॉर्मुलेट करना है फॉर स्टैटिस्टिक्स। इनकी इनकम नहीं है कहीं से, लेकिन इनका खर्चा जो है वो बैलेंस हो जा रहा है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, बोले मेरे घर में कोई भी नहीं है। अच्छा आप अकेले, नहीं मेरा एक बच्चा है। क्या वो कमाता है, नेचुरली वो आंगनवाड़ी जा रहा है तो वो कमाने ही रहा होगा। फिर आप बोलेंगे तो फिर हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, मतलब अगर बीमार पड़ गए तो दिल से आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, उससे हो जाता है। ओके अब मध्य प्रदेश की वो लेडी है,
तो बोले हमको गवर्नमेंट दे रही है, वो महतारी योजना है, लाडली बहन योजना है, उसमें पैसा मिल जा रहा है. ऑल्दो आई एम नॉट अर्निंग, like I am not doing anything for the income, but I am getting income indirectly. ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया. Qualitative में you should be prepared when you are interacting with the respondent. At that time, you should know each and every aspect of your research questions so that you can get the data that you are going to finally analyze it. हमारे अगर हम अपने जीवन में देखें, जितनी भी चीजें हमारे आसपास में चेंज होती हैं, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि वो उसको बैठ के ऑब्जर्व करते हैं. तो मुझको उसमें ऐसा एनालाइज करना चाहिए. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ और आपको इसको बेहतर समझने के लिए. आप लोगों ने फैक्ट्री में, अगर फैक्ट्री नहीं विजिट किया होगा तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें जो इलेक्ट्रीशियन होता था और या फिर जो मेंटेनेंस मशीनरी का देखता था, अब वो कैसे सामान लेके जाता था, दे यूज्ड टू कैरी थिंग्स इन देयर हैंड. और थोड़े दिनों बाद हमने देखा कि उनके पास एक टूल किट होता था, एक बॉक्स होता था जिसमें वो सामान लेकर जाते थे. अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं वो डांगरी यू नो, जिसमें नंबर ऑफ पॉकेट्स होते हैं. आप एयरफोर्स वालों को भी देखेंगे ना, आर्मी वालों को भी, तो आप देखेंगे कि जो प्लेन पे मेंटेनेंस करते रहते हैं उनके पास तो आजकल व्हील वाली एक गाड़ी होती है एंड दे हैव नंबर ऑफ पॉकेट्स इन देयर ड्रेसेस. आपको लगता है कि नंबर ऑफ पॉकेट्स जो या ड्रेस में जो चेंज होते हैं, या हमारे फोन्स पे जो चेंजेस आते हैं, या फिर हम और क्या यूज करते हैं, घड़ी, कई लोगों को वॉच यूज करने का शौक है, गॉगल्स, चश्मे, स्पेक्स, ये जो बेसिक चीजों को भी बता रही हूँ. अगर हम इनको यूज करते हैं तो इसमें कई चेंजेस होते हैं. हम पहले देखते थे कि अरे जो गॉगल्स है वो तो नॉर्मल है, सिर्फ ब्लैक कलर का होता था. फिर हमने देखा अच्छा ये तो ब्राउन कलर का आने लगा. फिर हमने देखा ग्रे कलर का आने लगा. तो ये सारे चेंजेस होते क्यों हैं? बिकॉज पब्लिक डिमांड दैट. उन्हें लगता है, काला तो उन्हें लगता था कि जरा सा भी अंधेरा हुआ, आज बारिश होगी तो उनको दिखाई नहीं देता था. तो ये सब किसने ऑब्जर्व किया? कोई बैठ के चेक कर रहा है कि हमें क्या चेंजेस लाने हैं अपने प्रोडक्ट्स में ताकि मेरे प्रोडक्ट्स की सेलिंग ज्यादा हो. मैं टूल किट का एग्जाम्पल आपको दे रही थी कि वो डांगरी ड्रेस क्यों पहनते होंगे. दिस इज अ क्वेश्चन. सुयश, काइंडली यू like mediate between me and the students, why they think that ये डांगरी वाली ड्रेस में चेंजेस आया होगा. पहले वो एक बैग लेके जाते थे टूल किट में और ये डांगरी वाली ड्रेस क्यों आएगी. देन आई कैन वेरी इजीली रिलेट like the observation technique कि ये क्यों आई and why qualitative research is more important as compared to the quantitative research. क्या आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कोई स्टूडेंट इसमें आंसर करेगा कि डांगरी वाली ड्रेस से क्या फायदा हुआ होगा, इतने नंबर ऑफ पॉकेट्स वाली ड्रेस से क्या फायदा हुआ होगा, या फिर कैसा रिसर्च हुआ होगा जिसके चलते ये वाली ड्रेस आ गई होगी. मैम टूल्स करीब में होंगे तो उसको टाइम वेस्ट नहीं होगा डांगरी वाली ड्रेस में. बिल्कुल, क्योंकि वो पहले क्या होता था, जैसे उसको अगर ऊपर बल्ब लगा हुआ है और उसको कुछ चीज करेक्ट करनी है तो बड़ा सा तो बॉक्स वो लेके ऊपर जा नहीं सकता. दूसरी बात, कितने बॉक्स भी छोटा रहता था, बहुत हैवी होगा तो वो नहीं कर सकता, और वो कितने सारे टूल्स अपने साथ लेके जा पाएगा. बार बार उसको, ये एक स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी को देखा कि जो पर्सन है वो बार बार लेकर आता था, फिर दूसरा प्लास हो या वो स्क्रू टाइट करने वाला हो, उन सबको लेकर आता था और उसका टाइम उसमें देखा कि अरे भाई उसको तो 20 मिनट्स उसको लग गए सामान ठीक करने में और 15 मिनट तो वो आते ही जाता रह गया. तो उन्हें लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है. टाइम भी वेस्ट होता है तो हमको प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि हम उतने टाइम में हो सकता है कोई और इफेक्टिव चीज कर सकते थे. उन लोगों ने फिर इसको जब ऑब्जर्व किया, जब देखते थे अच्छा बंदा बार बार जा रहा है, फिर उन्होंने टाइम मेजर किया, टाइम देखा तो 15 मिनट तो उसको आने जाने में लगे, 5 मिनट्स उस चीज को बनाने में लगा. तो उन्हें लगा इसमें क्या हम चेंज कर सकते होंगे. तब ये डिस्कशन करते हैं. डिस्कशन, आप कभी पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आता है फोकस ग्रुप मेथड होता है. उसमें वो क्या होता है, 4-5 लोग बैठ जाते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं अच्छा क्या हम इसमें बदलाव लाएं, अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होना चाहिए. तो वहीं से कोई एक ना एक आइडिया इरप्ट होता है. जैसे अगर आज भी मैं आप सबको कोई एक, जो थिंक पेयर स्कीम भी कहलाती है, मैं आपको कोई एक प्रॉब्लम दूंगी तो आपको अरे ये तो मैंने क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं, फिर मैं बोलूंगी
लेकिन आप कंटिन्यूअसली उस पर 5-6 मिनट डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके बीच में से आ जाएगा। कई बार ये जो फोकस ग्रुप मेथड है, इट्स अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में भी कई बार यूज होता है, बट क्वालिटेटिव में ज्यादा होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि जिनको वो प्रोडक्ट यूज करना है उनको भी बुलाया जाता है। जैसे मोबाइल मोबाइल में उन्हें पूछेंगे आपको, अच्छा ये सैमसंग का मोबाइल आया, आपको क्या लगता है कि कौन सा फीचर अच्छा है? उसमें से कोई एक बंदा होगा जो एप्पल यूज करता होगा, आईफोन। आईफोन वाला बोलेगा भाई मेरे मोबाइल में तो आई कैन कट द वीडियो, बड़ा क्लियर है, उसमें एक मेजर ऐप है जिससे मुझे टेप भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ से वहां डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। तो अब ये कौन फोकस ग्रुप मेथड करा रहा है? सैमसंग वाला करा रहा है। उसे लगा अच्छा तो आईफोन में दीज आर द फीचर्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने वो फीचर्स ऐड कर दिए अपने सैमसंग में या किसी और मोबाइल में, जो भी कंपनी उस रिसर्च को करवा रही है। और फिर वो जब नया लॉन्च करेगा, क्योंकि हम हर दिन सुनते हैं हर 6 महीने पे कोई एक नया मोबाइल का जो सीरीज लॉन्च होती है, एंड दे ऑलवेज दिस इज बेटर देन द लास्ट वन। अरे हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे कोई एक नया प्रोडक्ट आता है। कस्टमर इज वेरी कंफ्यूज, वो कौन सा खरीदे। आजकल तो 1 साल बाद जो हमारा मोबाइल होता है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उसमें वो फीचर्स ही नहीं होते जो 1 साल बाद आया होता है। इतनी फास्ट तो हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम इतने फास्ट इतने कॉस्टली एप्स को खरीद पाए, इतने कॉस्टली गैजेट्स को परचेज कर पाए हमारे लिए। अब कंपनी क्या चाहती है? उससे वो तो चाहता है कि आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि माय टेक्निक इज कंज्यूमर को क्या चाहिए? कम पैसे में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? वो चाहता है कि वो ज्यादा दाम में सामान को बेचे। अब एक बार तो बेच दिया, अब तो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो चेंज करता है अपने प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से करता है। वो मार्केट में पता करता रहता है कि मेरा ये जब ब्रांड आ गया, ये नया मैंने फोन, ऐप, टीवी, कोई भी गैजेट्स को आप देख लें, फोन, कैमरा, घड़ी, कोई भी चीजों को अगर मैं मार्केट में लेकर आ रहा हूं, तो उसमें मैं अब क्या चेंज करूं कि लोग फिर से आए उसको खरीदने। जैसे फ्रिज भी हमको लगता था फ्रिज में क्या होगा, ठंडा ही तो करेगा और तो कुछ करेगा नहीं, स्टोरेज होगा। बट फ्रिज में आ गया कि बाहर से बर्फ निकाल सकते हैं, फिर नया आ गया बाहर से पानी निकाल सकते हैं, फिर आ गया दही जमा सकते हैं आप फ्रिज में। आप नई चीजों को नहीं लाएंगे, नया इनोवेशन नहीं करेंगे, कंज्यूमर पुरानी चीजों को यूज करता रह जाएगा। प्रोड्यूसर इसलिए इतनी रिसर्च करता है, एक बार बेच दिया 20 साल तक तो कंज्यूमर दूसरा सामान ही नहीं खरीदे। नया चीज प्रोड्यूसर लाएगा तो कंज्यूमर सोचेगा 1-2 साल में कि आई हैव टू रिप्लेस दिस प्रोडक्ट, बिकॉज नए फीचर्स के साथ नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। तो बोथ आर बैलेंसिंग। हमको इक्विलिब्रियम होता है तभी हम क्या होता है, पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट होता है। प्रोड्यूसर इसलिए चेंजेस चाहता है ताकि उसके नए प्रोडक्ट को कंज्यूमर तुरंत खरीद पाए। ठीक है, तो ये जब हम रिसर्च देखते हैं, दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव क्या है? आप तो उनसे पूछ लेंगे भाई कितनी क्वांटिटी थी, अच्छा तुमने ये इस्तेमाल किया, तुमको सारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में तुम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उनके बिलीफ, उनके अजम्पशंस, वो जो चाहते हैं कोई क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में, वो तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च से ही करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम क्वालिटेटिव को देखें, ये एक जस्ट मैंने आपको पिक्चर से मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब हम उसको कंपेयर करते हैं, अच्छा वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा, मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, पिज्जा बहुत ज्यादा बिकता है, मैंने शायद लास्ट में एग्जाम्पल दिया था आपको मोड वाले में, कि अगर जो चीज ज्यादा बिकती है, तंदूरी चाय बहुत बिकती है, तो मैं अपना रेस्टोरेंट एक्चुअली उस प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मैं रेस्टोरेंट खोलूं तो कोई इसको खरीदे। फॉर द नेम सेक मुझे अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलना कि मुझे दिखाना है कि मैं रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, नो, बिकॉज आई वांट प्रॉफिट। विदाउट मनी आई विल बी नोवेयर। इसलिए मुझे ये सारी चीजों को करना पड़ता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कितने तरीके के होते हैं? वन इज ऑब्जर्वेशन, द अदर वन इज ऑब्जर्वेशन। जब हम पब्लिक के बीच में देखते, सुनते, समझते हैं और उसको एनालाइज करके कोई प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन, जिसको अभी हम थोड़ा डिटेल में लेंगे। सेकेंड इज फोकस। हम 6 से 10 लोग, कई बार छोटा भी ग्रुप होता है, 2 से 3 लोगों को भी हम लेकर बैठते हैं। अभी माय क्वेश्चन इज, रॉकी रानी कितने लोगों ने मूवी देखी है? स्टूडेंट्स ने? शायद नाम कुछ और बड़ा है, रॉकी रानी ऐसा मेन नाम था, जो आलिया भट्ट है जिस मूवी में, एक लड्डू की सेलिंग उसमें होती है।
कितने लोगों ने देखा है? आज जो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें रॉकी रानी कितने लोगों ने पिक्चर देखी है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल। लोगों ने देखा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा आप आंसर कर रहे हो, तो मुझे स्क्रीन डाउन करनी पड़ेगी, तब मुझे समझ में आएगा कि आप क्या आंसर कर रहे हो। मैम देखी नहीं है। अच्छा, किसी ने भी नहीं देखी है? आज जितने बच्चे हैं उसमें से किसी ने भी नहीं देखा है क्या रॉकी रानी मूवी? नो मैम। ओके, तो फिर मुझे कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा। एनीवे, ठीक है। एक इंटरव्यू मेथड होता है, मैं दूसरे में अभी तुरंत ही एक आपको मूवी क्लिपिंग दिखा के मैं एग्जांपल समझा दूंगी। इंटरव्यू होता है जब हम 1 to 1 कॉन्वर्जेशन करते हैं, हम पूछते हैं अच्छा आप क्या समझते हैं कि ये सामान आएगा तो कैसा लगेगा, क्वालिटेटिव में भी क्वांटिटेटिव में भी। क्वांटिटेटिव में हमने अगर डेटा लिया तो हम बोलेंगे 10 लोगों ने ऐसा कहा, 20 लोगों ने ऐसा कहा एंड 30 लोगों ने ऐसा कहा। अगर मेरी इतनी ही सैंपल है 30, 20 एंड 10, मैंने इतना बताया आपको, 60 लोगों का है, 30 लोग जो ज्यादा बोलेंगे नेचुरली मैं उस पर जाऊंगी, मैं अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस करूंगी। क्वालिटेटिव जब बैठ के मेरा इन्वेस्टिगेटर पूरा चेक कर रहा है और वो आके मुझे इंफॉर्मेशन देता है ये क्वालिटी में चेंजेस होंगे, आम जनता को ये प्रॉब्लम हो रही है और अगर हम इस फीचर को बदल लेते हैं तो नेचुरली हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दैट इज इंटरव्यू के बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और अपने रिसर्च के थ्रू हम उस प्रोडक्ट पे चेंज करते हैं या एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे और अभी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम ये चली कि भाई ओल्ड एज वाले जो लोग हैं वो स्टेशन पर कैसे पहुंचेंगे। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, ओल्ड एज वालों ने तो घूमना फिरना ही छोड़ दिया था, फिर हुआ व्हील चेयर आई। अच्छा, तो कुछ लोगों ने स्टार्ट किया जो एटलीस्ट उनको लगता था प्लेटफॉर्म बहुत दूर है तो व्हील चेयर से जाने लगे। फिर रिसर्च हुआ ये व्हील चेयर के लिए तो एक बंदा लगाना पड़ता है, वो पर्सन अगर वो लेकर जाएगा पर्सन को तो पूरे टाइम वो इसमें एंगेज हो गया और हमारे सैलरी का मैक्सिमम पोर्शन उसमें भी जा रहा है, तो हम इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करें। फिर रिसर्च होती है, रिसर्च में हुआ कि चक्के वाली गाड़ी कर देते हैं, एक साथ 4-5 लोग जाएंगे तो कम से कम एक पर्सन उसके पीछे पर्टिकुलरली उसी के पीछे लगा रहेगा कि जो लोग चल नहीं सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो कैसे जाएंगे स्टेशन टू स्टेशन। चक्के वाली गाड़ी लगवा ली, चक्के वाली गाड़ी के बाद लगा अरे अब तो ज्यादा लोग आने लगे जितने घुटने में प्रॉब्लम है, और 4-5 लोगों में भी हमको लग रहा है कि मेरा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, एक तो पेट्रोल तो जा ही रहा है, भले ही ठीक है एनर्जी वाली है तो मुझे उसको चार्ज करना पड़ा, और एक पर्सन की पूरी सैलरी इसी में है कि उसे घूमता रहता है कि किसको मैं इस रेलवे स्टेशन से उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचाऊं। अब भीड़ बहुत होने लगी, कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसी फैसिलिटीज बढ़ती हैं नेचुरली इनकम बढ़ने लगती है। हम रेलवे स्टेशन में चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेल का यूज करें, हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, हमने देखा 10-20% लोग बढ़ गए, अब हमने देखा 30-40% बढ़ने लगे, अब मैं इसको कोप अप कैसे करूं, हमने लगा दिया एस्केलेटर और लिफ्ट, यहां से वो लिफ्ट तक पहुंचाएगा, वापस तुरंत आएगा और नेक्स्ट लॉट को लेकर जाएगा, तब तक लिफ्ट से वो पर्सन जो है वो अपना शिफ्ट हो जाएगा उसको जहां जाना है। ये सारी एनालिसिस होती है, हम उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस जरूर देखते हैं कि भाई हमें तो ज्यादा फायदा हो रहा है अगर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। कैसे जब सारे बैंक में कंप्यूटर आने लगा तो लोगों को ऐसा लगा कि अरे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए लोगों ने इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। कोविड के टाइम पे एकदम से टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई, कैसे उनको एकदम से ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना पड़ा। इवन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टूडेंट्स को तो मुझे लगा ज्यादा मजा आया होगा, उन्हें लगा होगा वाह लेक्चर ऑन भी कर दो और सुनो भी मत, बट जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं उनको ये लगता होगा नेटवर्क इश्यू है तो मुझे आवाज नहीं आ रही। कुछ लोग बहुत ध्यान से लेक्चर सुनते हैं, कुछ लोग बहुत ध्यान से लेक्चर्स देते भी हैं, तो उनके लिए भी इट वाज अ मेजर चेंज। लेकिन आप देखिए कितना इनोवेशन हुआ। हम जो पहले क्लासेस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल में नहीं होती थी तो हम बहुत वीडियोस नहीं दिखा पाते थे, पर्टिकुलरली इफ आइल से मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे ज्यादातर अच्छा लगता है कि मैं किसी भी लेक्चर में कोई मूवी क्लिपिंग डालूं, कोई एडवर्टीजमेंट डाल के समझाऊं, तो मुझे लगता है स्टूडेंट को हमेशा याद रहेगा। हमारा एस्पेक्ट था हमने एक बार लेक्चर लिया, आप दोबारा एग्जामिनेशन के टाइम पे बस उसको टर्न करेंगे तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो शायद हमारे लिए, हम लेक्चर प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा हो गया कि हम ऑनलाइन मोड पर ले पाए, क्योंकि मैं सारे इफेक्ट्स ऑनलाइन मोड पे दिखा पाती हूँ अनलेस एंड अनटिल नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम मुझे ना फेस करनी पड़े। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट मेथड इज क्वालिटेटिव में सर्वे।
सर्वे हम जनरली सुनते हैं, आप देखिए इलेक्शन के टाइम पे पहले सर्वे होता है भाई, आप देखिए ये भी ऑब्जर्वेशन मेथड और सर्वे मेथड में ही हुआ। इस बार इलेक्शन में एक नया चेंज आया। नया चेंज क्या आया कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए उन्होंने चलित मतदान भी करवाया। मतलब जिस दिन इलेक्शन डेट थी मोस्टली सभी जगह छत्तीसगढ़ में 7th थी, बाकी जगह 17 नवंबर थी। उन्होंने क्या कराया, 7 और 17 के पहले चलित मतदान में जो लोग बिल्कुल बेडरिडन हैं, 80 साल के ऊपर हैं, जो वोटिंग देने नहीं जा सकते थे, उनके लिए इन्होंने कराया कि घर घर जाके वो बूथ लगा के उनसे वोटिंग लिए। क्यों गवर्नमेंट कराई होगी ये? ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो पाए। पहले करीब करीब 70% वोटिंग हो जाती थी, इस बार वो 74-78% गई, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज। हम चेंजेस क्यों लाते हैं? ताकि हमारी सरकार जो भाई 5 साल चलाएगी, जो हमको हमारे लिए हमारा भविष्य तय करके देगी, उसके लिए हम नहीं जा पा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो ये सर्वे में आया, इफ वी विल स्टार्ट दिस फैसिलिटी, maybe the persons who are not able to come to the vote, they will be able to give the vote और उनका पार्टिसिपेशन परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा सर्वे में आया कि भाई 100 लोग इस गांव में हैं लेकिन 80 आ सकते हैं, 20 तो आ नहीं सकते, पहले वो छूट जाते थे। उनके लिए पूरा रिसर्च होके, डिस्कशन होके ये मेथोडोलॉजी को लाया गया। कोई भी नई चीज आती है विदाउट रिसर्च इट इज नॉट पॉसिबल। हम रिसर्च को किस तरह से लेते हैं? हमें अपनी थीसिस बनानी है, मुझे अपना डिसर्टेशन बनाना है, मैंने 4 पन्ने 20 पन्ने 40 पन्ने लिखे, एक थीसिस बनाई, सबमिट कर दिया। बट कई लोगों का एम होता है उसके चलते गवर्नमेंट में कोई चेंज आए, उसके चलते पॉलिसी में कोई चेंज आए, उसके चलते लोगों को सुविधा हो पाए और कोई बदलाव आए। इसलिए हम कहते हैं रिसर्च। हम जो चीजों को देख रहे हैं उसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, या लोगों को टाइम कम लगे, या लोगों को क्वालिटी अच्छी मिल जाए, या लोगों को दोनों एस्पेक्ट्स में सैटिस्फैक्शन मिल पाए। तो सर्वे मेथड क्या होता है? क्वेश्चन या शेड्यूल क्वेश्चन रहता है, यस नो, या वो बताते हैं, या ओपन एंडेड में होता है वो बताते हैं। हम लिखते हैं आप क्या समझते हैं इससे, तो वो बताएगा मैं ऐसा समझता हूं, अगर ऐसा होता तो। एंड क्वेश्चन ईयर में आपने उनको ऑप्शंस दे देते हैं, दे विल हैव टू टिक any of the questions, any of the answers, जिसके लिए आप बाद में उसको एनालिसिस करते हैं। एक और मेथड होता है सेकेंडरी। हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, जो मैं जनरली अपने लेक्चर्स में यूज करती हूँ कि मैं वीडियोस के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ। दीज आर ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। मैंने आपको क्वांटिटेटिव बताया क्या होता है, क्वालिटेटिव बताया। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के क्या क्या तरीके होते हैं। क्वालिटेटिव भी हम सुनते हैं, क्वांटिटेटिव भी सुनते हैं। रियल लाइफ में क्या हो रहा है? ये मिक्स्ड मेथड हो रहा है। हम विदाउट दोनों को मिंगल किए हुए रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्टूडेंट जब भी रिसर्च को इनिशियली उठाता है उसको क्या लगता है, मैं क्वांटिटेटिव करूं कोई क्वालिटेटिव। अब सोशल साइंस में तो ट्रेंड आ गया, वो बोलेगा मैं तो स्टैटिस्टिकल टूल लगा रहा हूं, तो उसे लगता है लोग बड़ी इज्जत भरी नजरों से देख रहे हैं, अरे वाह ये तो स्टैटिस्टिकल टूल लगा रहा है। और दूसरा बोलेगा कुछ नहीं मैं तो एनालाइज कर रहा हूं, तो लोग उसको बड़ा ही सबसाइड नीचे कर देते हैं, अरे कुछ नहीं कर रहे तो लाएगा 4 जगह से और उसके बाद एनालाइज करेगा और उसका आंसर कर देगा। बट नो, in actual life, if you are doing research, you will have to mix both the methods. Without this, it is not possible. हम कहते हैं हमारा क्वालिटेटिव है, हम कहते हैं हमारा क्वांटिटेटिव है, बट एक्चुअली ये मिक्स मेथड है। हम जब तक, ये देखिए पांडा दिख रहा है, जब तक वो काला सफेद दोनों कलर्स यूज नहीं करता, पांडा कभी भी बहुत सुंदर नहीं लगता। तो हमको अपने रिसर्च में मिक्स मेथड यूज ही करना पड़ता है। मिक्स मेथड कैसे होगा? मैं डॉग पे कोई एनालिसिस कर रही हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? वाओ, ब्रीड इज जर्मन शेफर्ड, ही इज वेरी लॉयल। या मैं एज एन इंडिविजुअल आई वांट टू परचेज डॉग फॉर माय हाउस, तो मैं अब सर्च किया मैंने, भाई मैं कौन सा डॉगी खरीदूं। ऐसा तो नहीं आप गए उसने बोला भाई ये वाला बड़ा अच्छा और हम उठा लाए, नो, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे उसको घर में रखना है, मुझे देखना है कि वो कैसे बिहेव करने वाला है। लोग आजकल कैट्स पे भी एनालिसिस करने लगे, पहले इंडिया में ये कल्चर नहीं था कैट्स रखने का, बट अब वो भी आने लगा है, काफी लोग रखने लगे हैं। डॉग्स में मैंने देखा जर्मन शेफर्ड इज वेरी लॉयल डॉग, वो अपने मालिक से बहुत वफादार रहता है।
बुलडॉग खतरनाक होता है, कई बार हम डराने के लिए कुत्ते रखते हैं, लेकिन बुलडॉग को अगर बहुत भूख लगी और कुछ नहीं मिले तो अपने मालिक को खा जाता है। तो मैं इसलिए एनालिसिस करूंगी भाई वो मुझे ना खाए। तो मैंने देखा जर्मन शेफर्ड इज अ गुड डॉग एंड दे आर वेरी लॉयल। तो मेरी रिसर्च पे टिक, मैं जर्मन शेफर्ड को खरीदूंगी। अब मैं और क्या देखूंगी, कौन सा कलर लूं मैं। तो ये सब क्वालिटेटिव है, मैं उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे उसको खरीद रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये भी देख रही हूं कि वो बड़ा है कि छोटा है, कितने केजीज का है, मुझे तो सभी देखना पड़ेगा ना। मैं एकदम ही छोटा सा उठा लाई कॉस्ट वाइज, तो मुझे तो 1 साल तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी नहीं चाहती, मैं जॉब में हूँ, मैंने डॉग इसलिए रखा था कि भाई मैं शाम को आऊं तो कोई साथ में मुझे लगे कि कोई घर में है, और दूसरा मेरे घर की सुरक्षा होते रहे। नेचुरली मैं सारे एस्पेक्ट्स देखूंगी, कितने साल का है, कितने साल जीने वाला है। मेरी इन्वेस्टमेंट वो मुझसे 1 लाख रुपए ले रहा है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि 13 ही साल इसकी लाइफ है। मैंने 10 साल में खरीदा तो 3 साल के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करूं मैं। चलो भाई मैं 5 साल वाले कुत्ते को लाऊंगी। अब मैं 1 लाऊं कि 2 लाऊं, मुझे लग रहा है अगर 1 है और मैं जब तक शाम को नहीं, सारे पर्दे फाड़ दिए इसने। आप अगल बगल में कभी सुनते होंगे कि डॉग अकेले भी रहते हैं तो उन्हें बहुत बोरियत होती है तो सामान ही फाड़ देते हैं। तो क्या मैं 2 कुत्ते खरीद लूं, तो मैं कौन सा खरीदूं। तो मैं कम एज का खरीद लेती हूँ, तो उससे क्या होगा, माई बजट इज, मुझे अपना बजट पे तो देखना है कि मैं 50,000 का खरीद रही हूँ, 1 लाख का खरीद रही हूँ, 30,000 में खरीद रही हूँ। तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को देख रही हूँ, मैं कितना बड़ा डॉग खरीद रही हूँ, कितना छोटा डॉग खरीद, कौन से कलर का खरीद रही हूँ। तो इफ आई एम परचेजिंग एनी प्रोडक्ट, से इट इज टूथपेस्ट, आई एम कंपेयरिंग बोथ द क्वालिटीज, क्वालिटेटिव ऑल्सो एंड क्वांटिटेटिव ऑल्सो। अब टूथपेस्ट में आपको लगेगा भाई इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या करना है। आपको मार्केट में 100 रुपए का 100 ml लिखा रहता है ना, ग्राम लिखा रहता है, टूथपेस्ट में ग्राम लिखा रहता है। से 50 ग्राम्स का स्मॉल टूथपेस्ट आपको मिल रहा है 50 ग्राम्स का 100 रुपीज में, एंड यू आर गेटिंग 500 ग्राम्स इन 250 रुपीज। मेरे लिए तो क्वांटिटी के एस्पेक्ट से पता लगा कि अरे वाह, मुझे तो ज्यादा सामान मिल रहा है कम पैसे, आई गो फॉर दैट। ओके, तो मैं कोई भी सामान खरीदती हूँ तो मैं दोनों, मैं सामान भी खरीदती हूँ, मुझे आज कोई भी परचेजिंग करनी है, कार खरीदना है, ड्रेस खरीदना है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्वे मेथड। हम अपने जीवन में नॉर्मल मेडिसिन भी खाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, विदाउट रिसर्च नहीं जाते, हमें पता नहीं होता है अननोइंगली, बट हम सर्वे करते हैं, हम 4 लोगों से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है दांत वाला डॉक्टर मार्केट में कौन अच्छा है, वो बताएगा वो फलाना देश पांडे जी जो वहां सेक्टर 6 में बैठते हैं, वो जो सिविक सेंटर में बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो मेरे दांत का किया तो पायरिया हो गया मुझे, ये आई वाला स्पेशलिस्ट। यू ऑलवेज आस्क बिफोर यू गो टू द, इवन टू द डॉक्टर, इवन टू एनी जनरल ग्रोसरी शॉप। आपको पता लगेगा कि वो सिविक सेंटर के आखिरी में एक दुकान है, वो तो बहुत सारे डिस्काउंट्स देता है, 1 पे 1 फ्री है, क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। तो मैं उसी दुकान में जाऊंगी कोई भी सामान खरीदने के लिए। सो मिक्स मेथड इज अ रियल थिंग। हमें कभी भी इफ यू आर गोइंग फॉर एनी रिसर्च, लोगों के कहने पे आप इसको सिर्फ क्वांटिटेटिव मत बोल दीजिए। without mixing both the method, it's really difficult for you to analyze anything. हमें अपना डिसर्टेशन भी करना है, मिक्स मेथड आएगा ही, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें मिक्स मेथड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। वैसे तो आप स्टूडेंट्स पीजी वाले हैं, मेरे ख्याल से कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बट क्या अभी इलेक्शन में कोई आप लोगों का इंटरेस्ट था, आपने इलेक्शन में कोई चीज नोट की, उस पर ये कार्टून आया था, इसका क्या मतलब होगा, इस कार्टून का क्या मतलब होगा। मैं स्क्रीन डाउन कर रही हूं ताकि मैं आपको देख पाऊं। इलेक्शन में किसी को भी इंटरेस्ट था या किसी ने भी इसको फॉलो किया, या आपको पता लगा ये कार्टून क्यों होगा। Ma'am, can I see the cartoon again? श्योर। इतने छोटे में दिखाई दे रहा है कि बड़ा करूं मैं इसे, मैं ऐसे इसको ड्रैग करती हूँ तो बड़ा दिख रहा है क्या आपको। Yes, ma'am. जी मैम। लिखा क्या है दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. So actually, this cartoon explained because various new MLAs has been appointed as ministers and chief ministers, or new MLA has been appointed as chief Very minister nice. in the state. So this is an observation of all the party members. They realize that to become an MLA or to be chosen as a minister, it is not necessary that you are sitting, you are coming in front. If you are sitting behind, but if you are doing a good work,
you will be like picked up by the persons who are the think tank of the country, that you should be the minister और MLA. आपको इसलिए चूज किया जाएगा क्योंकि तुम्हारा वर्क इज फेमस. पहले लोग सोचते थे मैं आगे आगे आऊं, ये ऐसा होता है ना, हम क्लास में भी सोचते हैं मैं आगे बैठ जाऊंगा, मुझे ज्यादा सुनाई देगा. एक टीचर समझेगा कि आई एम वेरी सिंसियर, इट्स जस्ट अ जोक, आप कोई अपने पैसे ना ले. से मिनिस्टर्स को भी यही लगता होगा कि मैं बहुत आगे पीछे होऊंगा, जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनके ये दिखाऊंगा कि मैं बहुत काम करता हूं तो वो मुझे ही सेलेक्ट करेगा. नो, कार्टून बहुत ही ऑब्जर्व करके बनाया गया है. आप जब अखबारों में कार्टून देखते हैं तो आप बहुत ध्यान से उसको देखिए. बहुत अच्छी बात होती है अपने इंडिया में एडवर्टीजमेंट एंड कार्टून्स पे बहुत सोच समझ के रिसर्च करके बनाया जाता है. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक कोई कॉन्सेप्ट के लिए इसमें यही दिखा रहा है कि सब अब पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं ना, कि मुझे पीछे बैठना है, क्योंकि उन्हें लगा पीछे बैठने वालों को ये लोग उठा उठा के लाए हैं, उन लोगों को जिसको कोई लोग नहीं जानते थे. दिस कार्टून भी आप देखिए किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस हुआ है. ये भी आपको बड़ा दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन, मुझे स्लाइड शो पे जाने की जरूरत तो नहीं है. नहीं, मैं ऐसा मान लो कि आप यही कह रहे होंगे. सो अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या है? जब हम सिंपली चीजों को देखते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट में, मार्केट में, शॉप में चेंजेस लाते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहलाती है. इसके पहले तक हो सकता है आप भी सोचते होंगे कि ऑब्जर्वेशन से तो कुछ फायदा होता नहीं, क्या रिसर्च में होता होगा. बट आई बिलीव आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर you will find that observation is a method जो कि हर जगह अप्लाई हो रही है. अच्छा, इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी डेटा होता है क्योंकि जाकर ही देखना पड़ता है इसको और जाके एनालाइज करना पड़ता है. अच्छा, ये दूसरा, ये सिर्फ क्वेश्चनिंग से नहीं होता है कि हमने बस सवाल पूछ लिया और काम खत्म हो गया हमारा. नहीं, हमें लंबे टाइम तक उस कोई भी चेंज लाने के लिए लंबे टाइम तक हम उसको देख के समझना पड़ता है. लेकिन अब रिसर्चर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली बात, उसको ढंग से समझ में आना चाहिए कि वो रिसर्च किस चीज पे कर रहा है. लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज के एस्पेक्ट में मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उसको मैं एनालाइज कैसे कर रहा हूं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस. आप कैसे देख के एनालाइज कर रहे हो. कई बार आपने ये देखा होगा, टीचर्स इसको पढ़ाते भी हैं, 6 लिखा हुआ है, एक नंबर ऑफ ग्रुप पर्सन एक तरफ बैठे, कुछ बच्चे एक तरफ बैठे हैं. हम पूछेंगे ये क्या है, कुछ लोग उसको क्या बोलेंगे 6, कुछ लोग उसको क्या बोलेंगे 9. तो ये इसलिए दिखाया जाता है कार्टून, ये समझने के लिए कि हम कोई सिचुएशन बताते हैं, कोई रिसर्च को अगर हम सामने दिखाते हैं तो हर कोई ग्रुप वाला उसको अलग अलग ढंग से समझता है. जैसे मैं भी ये लेक्चर दे रही हूँ और आप बाद में डिस्कस करेंगे तो कुछ लोग उसको बहुत ही अलग एंगल में समझे होंगे और कुछ उसको बहुत आप खुद भी रियलाइज करते होंगे. बीइंग जैसे भी सुयश कोऑर्डिनेटर है तो वो अगर वो मतलब शायद सुयश को ये एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर उसने टीम को बोला होगा कि सुनो 12 बजे से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, कम लाइक शार्प 12, कुछ लोग समझेंगे 12 बजे आना है, कुछ लोग समझेंगे 11:15 बजे आ जाते हैं क्योंकि 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा होता है, हम उसको बहुत अलग ढंग से रीड करते हैं. जब 12 शार्प पे स्टार्ट हो जाएगा तो नेचुरली आपको थोड़ा पहले तो आना पड़ेगा टू एडजस्ट. आपको थोड़ा एडजस्ट होंगे तब तो लेक्चर स्टार्ट हो पाएगा. हो सकता है आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे रिसोर्स पर्सन का, तो उसमें भी 3-4 मिनट जाते हैं. अब 12 से उसको लेक्चर स्टार्ट करना है, आधा टाइम तो आप इंट्रोडक्शन में चला गया, तो अब रिसोर्स पर्सन तो खुश होगा, चल कम देर बोलना पड़ रहा है. लेकिन जो पार्टिसिपेंट जिसको फायदा होने वाला है वो सोचेगा कि पूरा टाइम तो इंट्रोडक्शन में चला गया. ये भी हो सकता है कि उसे लगेगा चल बहुत बोर नहीं हुए लेक्चर से, कोई भी बात हो सकती होगी. तो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑब्जर्वेशन. इसके बाद मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाने वाली हूँ. वो क्लिपिंग मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि एक मूवी है, इसमें देखिए टीचर्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं. ऑल दो यू ऑल आर अडल्ट, मतलब 18 सभी क्रॉस कर चुके हैं. क्योंकि मूवी क्लिपिंग्स होती है, कई बार कोई लैंग्वेज बहुत डिफरेंट वे में होती है, इसको आप एज अ रिसर्च का ही पोर्शन समझिएगा टू अंडरस्टैंड. मैंने वो क्लिपिंग इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जनरली जब हम 2 लोग एक ही टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि एक अलग एनालिसिस कर दिया, एक अलग एनालिसिस कर दिया.
आयुषी हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने सुना है? आरुषि हत्याकांड, ये नोएडा में हुआ था। ये करीब 10 साल हो गए, इस पे 2 मूवी बनी, रहस्य एंड तलवार। किसी को भी आरुषि हत्याकांड के बारे में पता है? Yes, ma'am. ओके, क्या किसी ने भी ये दोनों मूवीज देखी है? I have seen तलवार में. यू हैव सीन तलवार। तलवार में तो डायरेक्टली दिखा दिया गया है कि पेरेंट्स ने मर्डर किया है, मेरे ख्याल से। यस, उसकी एनालिसिस आखिरी में ऐसी जाती है। आप रहस्य देखिए। No, ma'am. नहीं, तलवार में क्या दिखाया है फिर? Ma'am, तलवार में इरफान खान was the investigating officer, and at the end he proved that parents are not responsible for the killing. They are not responsible. ओके, तो फिर रहस्य में दिखाया है कि पेरेंट्स में भी मदर के पोर्शन को दिखाया है शायद, और वो भी मजबूरी दिखाया है कि क्यों ऐसा हुआ था। मतलब अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो यू विल बी, आप तलवार देखेंगे तो आपको कन्विंस हो गए होंगे कि यस, हाँ, पेरेंट्स आर इनोसेंट। आप रहस्य को देखेंगे तो आपको लगेगा ओ, इसके चलते पेरेंट्स को करना होगा। वेरी कन्विंसिंग। देखिए, ये दोनों लोग जब मूवी बनाए होंगे तो ये दोनों ने रिसर्च की होगी, दोनों ने अपने अपने ढंग से समझा। बट आप रहस्य मूवी देखेंगे, इट्स अ बेटर पिक्चराइजेशन, क्योंकि बड़ी बजट की मूवी है, अच्छे एक्टर्स को उसने यूज किया है, तो वो भी बड़ा कन्विंसिंग लगेगा। मैंने भी शायद पहले तलवार देखी, अब बहुत दिन हो गए हैं तो उतना मुझे भी याद नहीं। तलवार देखी तो मुझे लगा हाँ यही एंगल रहा होगा। मैंने रहस्य देखी तो मुझे लगा अरे हाँ, ये भी एंगल हो सकता था, यही होगा। तो रिसर्च में क्या होता है, आप क्या क्वेश्चन पूछे, आप क्या समझे, आपने क्या एनालिसिस की, बट आपकी एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए। 2 लोग एक ही जगह जाके एक ही चीज को देखेंगे बट डिफरेंट ढंग से समझेंगे। जनरली हम लोग इसको बताते हैं क्लास में, तो कुछ लोग कन्विंस होते हैं, कुछ कन्विंस नहीं होते। उन्हें लगता है ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, अरे एक ही जैसी चीज है, उसने मारा, मैंने 4 आदमियों से पूछा, उसने भी वो सेम 4 लोगों से पूछा, तो एक ही एनालिसिस होगी। बट ऐसा जनरली नहीं होता है। ये जनरली क्या होता है, प्राइमरी रिसर्चेस, मैं अब आपको ध्यान से, आपको माइक इसलिए ऑन करना पड़ेगा क्योंकि माइक नहीं, आपको मुझे लगता है ऐसे ही सुनाई दे देगा, नहीं सुनाई देगा तो आप बताएंगे उस क्लिपिंग को कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। रिसर्च जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, यह होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से उस पर कोई एनालिसिस कर पाता है। और जनरली हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन में कहते हैं, हम परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल पे नहीं जाते, हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। क्योंकि ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें 2 पर्सन एक ही चीज को देख रहे हैं, 2 पर्सन एक ही चीज को देख रहे हैं, बट उनकी एनालिसिस अलग अलग है, और एक ही चीज को नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो एक ही चीज को देख रहे हैं, दोनों बात तो कर रहे हैं बट बहुत अलग अलग चीजों को कर रहे हैं। यू जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल रियलाइज दैट in real life, when you go for the research, if 2 persons are going, they are telling 2 different things. Video clear hai ki nahi? Suresh, you will tell me, and sound also. Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am, clear. Okay. क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है, ऐसा लगता है जमीन पर नहीं हवा में तैर रही है। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग न पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है, बहुत संभाल के। इतनी बड़ी होगी, अनमोल, मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा ना, हाँ कोई फॉरेन कार में आई थी। फॉरेन कार में आई थी? हाँ, कौन आई थी भाई जो कार में आई थी? वो अमर कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ, तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। तो ये क्लिपिंग से क्या हमको पता लगा, कई बार हम इन्वेस्टिगेटर को भेजते हैं टू रिसर्च एनीथिंग, वो कुछ और ही देख कर आते हैं, और मुझे लग रहा है कि मैंने उसको फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग के लिए भेजा। इसलिए हमको बहुत ऑब्जर्वेशन टेक्निक में स्पेशली, इसलिए रिजल्ट्स कई बार अलग आते हैं, क्योंकि आपने देखा एक पर्सन कार के लिए बात कर रहा था, एक पर्सन जो कार में आया था उस पर्सन के लिए बात कर रहा था, और हमें लगता है कि हम एक ही रिसर्च पॉइंट पे बैठे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो दोनों बातें एक ही होंगी।
ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक में हमको इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं हम उनके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल पर नहीं। और दूसरी बात, हमारे पास ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ए ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे बेस करता है या बी ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे बेस करता है? ऑफ कोर्स ए, मैं बता दूं क्योंकि अभी कितना टाइम है अभी, क्योंकि थोड़ा लेट लेक्चर स्टार्ट हुआ। मेरे हिसाब से क्या मैं 15 मिनट ले सकती हूँ या आपके नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन आ जाएंगे? नहीं तो मुझे फास्ट बताना पड़ेगा, मैं एग्जांपल्स हटा दूं, टॉपिक को बस क्लियर कर दूंगी। मैम 110 तक आएंगे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन। 110 तक आएंगे तो सो आई हैव 14 मोर मिनट्स। ओके, सो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन टेक्निक में लोग कैसे बिहेव करते हैं हम उसको देखते हैं जनरली। सो देयर आर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम देखें तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट में मतलब अगर मुझे कोई स्टडी करनी है, कोई चीज समझनी है, तो मुझे उस ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा। मैंने इसमें एक कार्टून से दिखाया ग्रुप का मेंबर, हमें देख के तो लगता है ग्रुप का मेंबर मतलब हम साथ खड़े हो गए, लेकिन मैंने एग्जाम्पल भी इसमें दिया है। मुझे व्हील चेयर में कोई चेंजेस लाने हैं, शायद आपका ध्यान गया होगा, पहले व्हील चेयर जो होते थे वो सिंपल ही होते थे, चक्के तो थे उसमें, लेकिन जो पर्सन है उसको हमेशा एक दूसरा पर्सन चाहिए होता था जो उसको धक्का मार के लेके जाए। फिर लोगों ने सोचा सेकंड पर्सन को क्यों अननेसेसरी हम इन्वॉल्व करें, हम ऐसा क्यों नहीं बनाते कि जो लोग कुछ ढंग से मतलब सिर्फ उनके पैर में प्रॉब्लम है, उनको घुटने में दिक्कत है, तो हम एक एक्स्ट्रा पर्सन क्यों उसके साथ लगाएं। तो उन्होंने उसमें चेंजेस लाए। अब ये चेंजेस कैसे लाएंगे? ये देख के, बैठ के, समझने से, डिस्कशन करने से भी कुछ बातें आएंगी, लेकिन एक्चुअल बात कब आएगी? जब मैं चाहती हूं कि मेरे प्रोडक्ट में चेंज आए, मैं खुद वैसा बनकर देखूं। मतलब पर्सन खुद व्हील चेयर पे बैठ के देखा कि क्या दिक्कत आती है। मैं अगर चला रही हूं तो अच्छा वो फंस रहा है, तो मैं इसमें क्या चेंज लाऊं? 4 कंसल्टेंट से वो डिस्कस करते हैं, कंसल्टेंट भी बैठ के देखते हैं, हम इसमें अच्छे चक्के लगा दें, विद स्टॉपर लगा दें, ब्रेक्स लगा दें, हम इसमें एक टेबल रख दें ताकि उसको किसी और से कोई भी सामान मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आप हॉस्पिटल बेड्स में भी, नॉर्मल आप घरों में भी चीजों में देखते होंगे कि कैसे सुविधाएं हमारे प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही हैं। ये क्या करते होंगे? ये किस रिसर्च से बनता है? पार्टिसिपेंट, उनको वहां पर रहकर, बैठकर उस चीज को देखना पड़ता है। they'll have to feel that thing, then only they'll be able to give suggestion। हम सब बैठते हैं, कहते हैं ना, हम सब कई चीजों को देखते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ देखते हैं, कई लोग उसमें टिप्पणी करते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो ये बेहतर होता। कुछ लोग उसको देख के समझते हैं मैं इसमें चेंज ला के उसको प्रोडक्ट को ले आऊं तो ये नया प्रोडक्ट मेरा हिट हो जाएगा। तो वो ऑब्जर्वेशन वाली बात होती है, और फिर विलिंगनेस की बात भी होती है। तो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में अब प्रोड्यूसर को तो अपने सामान को अच्छा और बड़ा करके बेचना और महंगा बेचना है, तो वो ये सारी रिसर्च करवाते हैं ताकि मेरे प्रोडक्ट में फाइनली इतनी अच्छी लोग उसको खरीदने के लिए खुद आए। यानी आज मुझे, हर के घर में बुजुर्ग होते हैं, हर के घर में ऐसा होता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बट हर कोई बिजी है, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसको घर का काम है, तो एक पर्सन के पीछे आप नहीं लगे रह सकते हो। क्यों ना मैं जिस प्रोडक्ट में उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐसे चेंजेस ला दूं कि एटलीस्ट 80% ऑफ द काम वो अपना कर पाए, 20% मैं डिस्टर्ब हूँ। My time is also important, even that person's time is important। उसको भी ये नहीं लगेगा कि भाई मैं एकदम लाचार होके बैठ गया, उसे भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि एटलीस्ट आई एम एबल टू डू समथिंग, लोग मुझे बोझ तो नहीं समझ रहे। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होता है, जब मैं उस चीज को फील करके उसमें कुछ चीज लाता हूँ, मतलब मैं खुद पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ। पार्टिसिपेंट का मतलब सिर्फ खड़े होने से नहीं है, जो चेंज लाना है मैं वैसा एक्ट करके देखूं या उस सामान को यूज करके देखूं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब मैं बाहर से दूर से बैठ के उसको देख रहा हूं, दूर से बैठ के, आप ऑनलाइन सभी लोग सामान ऑर्डर करते होंगे, या फिर आप कोई लेक्चर देखते होंगे, या कुछ भी मूवी देख रहे हैं, एनीथिंग, आप कोई भी चीज मोबाइल पे देखते हैं, तो अब आप ये देखते होंगे कि थोड़े दिनों बाद वैसी सजेशंस आने लगते हैं। तो ये कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको? एआई को ये पता लग जाता है मैंने आज प्राइस देखी, डिस्काउंट सर्च किया, या फिर मैंने किसी प्रोडक्ट को देखा, वो हमें वैसे सजेशंस देना स्टार्ट करता है। तो एआई हमको वही चीज, ये कौन एआई के लिए इतना पैसा दिया होगा? ताकि वो हम पे नजर रखे, कंपनी वाले।
अब भाई अमेजोन को तो अपना सामान बेचना है, अब मुझे पता ही नहीं है कि ये मार्केट में सामान है, तो मैं कितने लोगों से मैं डिस्कस करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देखती हूँ, तो मेरे तो मोबाइल में ही ऑप्शंस आ जा रहे हैं। दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जो एआई हमको बैठ के देख रहा है एंड दे गिव अस सजेशंस। ये क्या हुआ, दे आर नॉन पार्टिसिपेंट, वो हमको सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कि हम क्या करें, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस करके हमको सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर कि भाई लोग आजकल ये ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इसकी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाइए। ये पैसिव ऑब्जर्वर होते हैं। एक्टिव ऑब्जर्वर जो रह के वैसा ही काम करना शुरू करता है। पैसिव ऑब्जर्वर जो दूर से देख के बैठ के एनालाइज करता है और उसे लगता है ओके ये चेंज होना चाहिए। जैसे इसमें एक और, आप लोग डी मार्ट, क्या मैंने पिछले बार क्वेश्चन पूछा था आपसे, ग्रोसरी शॉप में आप जाते हैं, बड़ी ग्रोसरी शॉप, अब छोटा जनरल स्टोर तो नहीं, जनरल स्टोर में तो इतना सारा सामान होता है कि हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं उसको। हम अगर बड़े शॉप्स में गए हैं, आप लोग गए होंगे, आपके एरिया में छतरपुर में कोई डी मार्ट है, रिलायंस ट्रेंड है, या बिग बाजार तो सभी जगह बंद हो गया, आप लोगों ने देखा है, या फिर विशाल मेगा मार्ट, ऐसे किसी शॉप को आपने कभी देखा है, गए हैं, मतलब वहां पर होगा तो आप जरूर गए होंगे, बता पाएंगे बच्चे? यस मैम, रिलायंस ट्रेंड, डी मार्ट कोई गया है? डी मार्ट बड़ा लेआउट रहता है, इसलिए मैं डी मार्ट पे मैंने स्ट्रेस किया। वैसे रिलायंस ट्रेंड में भी आप ये देखेंगे, आप जब जाएंगे ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे लेआउट उसका चेंज हो जाता है। लेआउट मतलब जब आप शॉप से एंटर हुए तो आपको पहले एक ट्रॉली मिलती है या बैग मिलता है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे अरे ट्रॉली वहां जाके मिल रही है, या जहाँ पे सारे ऑफर्स डिस्प्ले किए हुए हैं वहां पे ट्रॉली मिल रही है, या ट्रॉली नहीं, आज मैं सोच के गई थी बाहरी बिस्किट है, मैं जाऊंगी बस घुसूंगी, पर्स छोड़ जाऊंगी कार में, फोन पे से पेमेंट कर दूंगी, हाथ में मैं 100 रुपए लेके चली गई। ऐसा भी कर सकती हूँ मैं कि मैं बिस्किट खाऊंगी और मैं बाहर आ जाऊंगी, बट नहीं, मैं गई तो मैंने देखा गेट पर तो बिस्किट ही नहीं है, पिछले बार तो बिस्किट थी यहाँ पे। तो कभी आपको मतलब आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये रोज शॉप इतना टाइम है इनके पास, डेली सामान बदल दे रहे हैं, कभी चिप्स सामने रख देते हैं, कभी कभी बिस्किट सामने रख देते हैं, कभी चॉकलेट सामने रख देते हैं, कभी सर्फ सामने रख देते हैं, ऐसा क्यों करते होंगे? स्टूडेंट, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि ये ऐसा क्यों करते होंगे? Ma'am, there are primarily two reasons for that. First, to change the outlet so that it does not bring a monotony or monotonous, it becomes monotonous for the customers. Okay. क्योंकि एक ही एक स्टोर को बार बार या एक लेआउट को देख के शायद इनका जो इंटरेस्ट है वो लूज कर जाते हैं लोग। दैट कैन बी अ रीजन, ये एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल। बस यही, कोई और कोई रीजन बताएगा? टाइम कम है अपने पास, आप जल्दी बताएंगे तो मैं उसको बताऊं। Yes, and what? Also they do it due to the stock variations or stock coverage. जिस चीज के स्टॉक कम है या जिससे ज्यादा है उस हिसाब से भी उसको प्लेस करते हैं, सो दैट जो स्टॉक में काफी टाइम से पेंडिंग है वो पहले सेल आउट हो जाए। रिलायंस ट्रेंड जनरली जो भी विजिट करते हैं उन्हें ये समझ में आता है कि जो एक्सपायरी होने वाली है जिन प्रोडक्ट्स की, उसको उन लोग एक अलग काउंटर पे डिस्प्ले करते हैं विथ ऑफर्स। से क्योंकि उन्हें पता है 30 दिसंबर को ये चिप्स खराब हो जाएगी, अब मैं उसको 100 रुपए का, अगर 100 रुपए उसी में बेचूंगा तो कौन खरीदेगा, तो मैं वहां ऑफर लगा दूंगी 22 ऑन 22 कि एक पे एक फ्री है। अब चिप्स तो मैं 2 दिन में कंज्यूम कर सकता हूँ, कंज्यूमर सोचेगा अरे वाह फायदा ही है, चल मेरे फ्रेंड का बर्थडे 10 चिप्स के पैकेट दे आता हूँ, मतलब 10 आ जाएंगे, 5 का पैसा लगेगा, 5 तो मेरे पास चिप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज होती है कि प्रोड्यूसर चाहता है उसका नुकसान ना हो, अदरवाइज उसको सारा सामान फेंकना पड़ता, वो ऑफर्स लगा देता है तो उसका सामान बिक सकता है। यही अगर मैं 26 दिसंबर को पहुंचूंगी तो वो एक के साथ 3 भी फ्री दे सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड, लेआउट इसलिए भी चेंज होता है और हर एक 15 डेज में लेआउट चेंज होता है बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, इसलिए बिकॉज दे ऑब्जर्व कस्टमर क्या खरीद रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। उन्हें मालूम है कि कस्टमर ये चीजों को तो खरीदेगा ही, उसको वो क्या कर देंगे, अंदर वाले गैलरी में डालेंगे, क्योंकि मुझे घर का सामान तो खरीदना ही है, गेहूं खरीदना ही है, चावल खरीदना ही है, अंदर भी रहेगा तो मैं खोजते हुए वहां चली जाऊंगी। वो सामान जो मैं जनरली कभी नहीं देखती, लेकिन मुझे कोई सामने दिख गया तो मुझे लगेगा अरे वाह
अच्छा ये नया टाइप का क्रीम बिस्किट आया है, बाहर डिस्प्ले रहेगा तो हो सकता है मेरी नजर पड़े तो मैं उसको खरीद लूं, अंदर रहेगा तो मैं तो अंदर जाने वाली नहीं, मुझे तो पता है ये रास्ता है, मैंने यहाँ से सामान खरीदना और वापस हो जाऊंगी। टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू दे चेंज द लेआउट, इट्स ऑल बेस्ड अपॉन देयर ऑब्जर्वेशन टेक्निक। कस्टमर कैसे खरीद रहा है, क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट दे सिंपली चेंज देयर लेआउट्स। ये एक मेजर फैक्टर होता है जस्ट टू इंक्रीज। देखिए फाइनली होता है हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उसी के लिए हम सारे चेंजेस करते हैं। अब आप कहीं भी जाएंगे, इवन इन योर क्लासरूम, इवन इन योर कॉलेज, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद हर कॉलेज में एक ही जैसी नोटिस लग रही है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट से आ जाता है। आपको ये तो करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन जानी है। सो एवरीबडी एक्ट्स इन दैट वे। गवर्नमेंट क्यों करती है उसको पता लगता है, भाई बहुत बुलिंग हो रही है कॉलेजेस में, ट्रांसजेंडर को लोग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, सिर्फ मेल फीमेल को अभी एक्सेप्टेंस मिल गई, पहले फीमेल को भी नहीं मिलती थी, इसलिए पहले फीमेल के लिए बहुत चेंजेस हुए, ट्रांसजेंडर्स के लिए चेंज हो रहे हैं। ऐसे आप हर थोड़े दिन पे देखेंगे कोई एक नया चेंज हो रहा है। व्हील चेयर रखना इंपॉर्टेंट हो गया, आप भी अपने कॉलेजेस में देखेंगे व्हील चेयर कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले होने लगा है, कुछ सामान डिस्प्ले होने लगे हैं। तो ये इंस्पेक्शन से, फोकस ग्रुप मेथड से लोगों को पता लगता है कि अगर हम ये चीजों को ले आएंगे, जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते होंगे, पिक्चर हॉल में पहले एडवर्टीजमेंट्स ही सिर्फ दिखाई जाती थी, अब आप देखेंगे तो सोशल अवेयरनेस की भी कुछ ऐड दिखाते हैं कि टोबैको नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारी होती है, कैंसर हो सकता है। गवर्नमेंट को लगा कि पिक्चर में बड़ा ध्यान से यूथ देखता है, अगर हम इसको दिखाएंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के सोशल ऑब्लिगेशंस हो या फिर प्रॉफिटेबल चीजें हो प्रोड्यूसर के लिए, वो दोनों लोग उस जगह पे सामान रखते हैं ताकि लोग उसको देखें और उसका यूज करने लगे या उसको समझ के कुछ चेंजेस आए। जैसे जब हमको लेडीज के लिए चेंज लाना था, तो अब आप देखेंगे पहले एडवर्टीजमेंट अलग होती थी, पिक्चर अलग बनते थे कि बहू को जला दिया, उसी से काम करवा रहे हैं, बट चेंज हो गया। इसलिए मैं रॉकी रानी मूवी के बारे में आपसे पूछ रही थी, उसमें एक ग्रुप डिस्कशन मेथड में दिखाया एंड फोकस मेथड में उसमें दिखाया कि उनके प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं इंक्रीज हो रही। अब आप ये मूवी देखेंगे तो उस पर्टिकुलर क्लिपिंग को आप जरूर वॉच करिएगा। तो उसमें जो हीरोइन है उसको, क्योंकि हीरोइन वहां से क्रॉस हो रही थी, उससे पूछा उन्होंने कि इसमें क्या चेंज लाना चाहिए, तो उनके लड्डू में क्या एडवर्टीजमेंट होता था कि जेंट्स बैठा हुआ है और लेडीज जो है वो लड्डू बना बना के ले आ रही है, डांस करते हुए दे आर कमिंग और उस लड्डू की एडवर्टीजमेंट कर रही है। लेकिन कुछ सालों बाद, 10 साल पहले, दैट वाज अ वेरी बिग हिट दैट एडवर्टीजमेंट। आफ्टर 10 years वो एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया। तो उन्होंने वहां कंसेप्ट लाई कि आपको इसकी टैगलाइन देनी चाहिए, स्वाद वही सोच नहीं, और उसको एड को उन्होंने पूरा चेंज किया। उस एड में ये किया कि अब मेल बना के ला रहा है वो लड्डू, क्योंकि आज का ट्रेंड चेंज हो गया है, तुरंत मार्केट में वो हिट हो जाता है प्रोडक्ट और वो अगेन टॉप 1 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा परफॉर्म, उस पर्टिकुलर लड्डू जो धन लक्ष्मी लड्डू, उसके लिए वो कभी भी, मतलब सालों से वो लड्डू बहुत फेमस था। तो इस तरह से उसको दिखाया गया है कि जब वो डिस्कशन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, हम पुराने जमाने के ऐड और पुरानी रीति रिवाजों को दिखाएंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें यही दिखाता है, स्वाद वही सोच नहीं। तो ये जो टैग लाइन्स भी आती हैं, दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन द रिसर्च और द ऑब्जर्वेशन स्किल और फोकस ग्रुप मेथड, ताकि हम उसमें चेंज लाएं और लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दें। तो हम शॉप पे जाते हैं या सामान भी देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे बेस्ड होती हैं। 7 मिनट और है, तो मैं कंडीशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दूं आप लोगों को। 2 तरह की कंडीशंस होती हैं, एक नेचुरल, एक कंट्रोल। नेचुरल मतलब कैमरा लगा दिया, आप देखते हैं ना आजकल बड़ी क्लिपिंग्स आती हैं इंस्टा वगैरह पे कि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉगीज क्या कर रहे हैं। मतलब हमको अब क्लिपिंग्स को देख के, इंस्टा में रील्स को देख के समझ में आया कि डॉगीज भी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सामान नहीं मिलेगा, उसको चुपचाप से छुपा के खा लो। या फिर डॉगीज को मेडिसिन देना है तो उनको भी वो दिखाते हैं कि भाई किसी को मारो तो उस डॉगी को समझ में आएगा मैं ये नहीं खाऊंगा तो मुझे आज मार पड़ने वाली है। इवन एनिमल्स अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट टू से टू देम, या ह्यूमंस उनको क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है। जब हम बैठ के, जो डिस्कवरी चैनल में हुआ, कैंडिड कैमरा लगा होता है, डिस्कवरी चैनल में हम ये रूटीन देखते हैं कि एनिमल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन कैसे रिएक्ट करते हैं। आप, वो एक आता था जावेद जाफरी की आवाज में, वो कैमरे लोग कैसे जा रहे हैं, या गिर गए, क्रॉसिंग पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल पार्टीज में कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी आती हैं। उस ऑब्जर्वेशन को देख के लोग समझते हैं कि अगर कोई कंट्रोल चीज ना लगाई जाए तो पर्सन कैसा बिहेव करेगा। इसमें एक एग्जांपल हमेशा दी जाती है कि लोग ट्रैफिक लाइट में जब सुधार चाहते हैं, इसलिए ये कैमरे लग गए
क्योंकि पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ बैठ के देखा ट्रैफिक लाइट पे कि होता क्या है। तो देखा अगर येलो लाइट है और कोई नहीं दिख रहा है तो जनरली लोग क्रॉस कर देते हैं क्रॉसिंग को। आप भी ये करते होंगे। जब से अब कैमरे लगे और पुलिस वाला पूरे टाइम खड़ा हो गया हमारे पीछे दौड़ता है, हम भी डर गए, हमें मालूम है कि वो हमको फाइन कर देगा। तो अब येलो लाइट होती है तो मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, डिफरेंट वे में कर रही हूँ। मुझे अकेले खाना है तो मैं कैसे भी खाऊंगी, अब मुझे 4 लोग देख रहे हैं तो मैं डिफरेंट बिहेव करूंगी। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है एक नेचुरल वे से पता करना। दूसरा कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे में जैसे मुझे कोई एक ड्रग लाना है या मुझे ये देखना है कि डीप स्लीप लोगों की हो रही है कि नहीं, तो मैं उस पे कंट्रोल वे कैसे करूंगी, मैं सारी मशीनरी को उसके साथ लगा दूंगी और ये देखूंगी कि जब कोई पर्सन सो रहा है, अब वो सपना देख रहा है कह रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिक ब्रेन की एक्टिविटी के चलते क्या चेंजेस मुझको अपनी मशीनरी में दिख रहे हैं। क्योंकि मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ कि अगर ढंग से स्लीप नहीं हुआ तो उसके ग्रोथ पे कैसे फर्क पड़ रहा है, ढंग से स्लीप नहीं हुआ तो क्या वो डिप्रेशन में तो नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी स्टडी करनी हो तो मुझे उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना पड़ता है। मुझे वैक्सीन बनानी है तो मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दूंगी। पहले मैं इंजेक्ट कर दूंगी निमोनिया, कोविड के लिए यही हुआ था। उसके बाद मैं उसमें वो सारी वैक्सीन जो मुझे समझ में आ रही पहले दिन डाल के देखूंगी। नेचुरली पहले जानवरों पे, एनिमल्स पे ही रिसर्च हुआ, डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं दिया कि अगर लगातार लोग मरने लगेंगे तो क्या होगा। एनिमल्स पे दिया कि आज क्या फर्क पड़ा, कल क्या पड़ा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद। क्योंकि कभी ड्रग 15 दिन में बहुत अच्छा सूट होता है, 15 दिन बाद पता लगता है कि पर्सन पे हार्ट अटैक आ गया, कुछ ना कुछ चीज हो गई। तो उनको 6-7 महीने तक वो लगातार ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कहता है। यानी मैंने ऐसी सिचुएशन दी जहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग से चीज डाल के उसको कंट्रोल कर रही हूँ। दीज आर ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। सुयश, टाइम खत्म हो गया मेरा। नेक्स्ट सर भी आ गए हैं, सीएल आ सर गए हैं, प्रजापति ओके। सर। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन स्किल्स। इसमें कोई और चीजें भी है, कभी और मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स आई विल कवर। बट बेसिक जो ऑब्जर्वेशन स्किल में हम क्या चीजें यूज करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, दैट आई हैव कवर्ड। एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स दैट आपको ऐसा लगता था कि क्वांटिटेटिव ज्यादा अच्छा होता है, बट नो, मिक्सचर ऑफ इट। और अगर आपको वाकई कोई पॉलिसी में चेंज लाना है तो गो फॉर द क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या ध्यान रखना है, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक्स टू सुयश। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. It was really a detailed and well presented lecture, like the earlier one. Now I would like to invite Miss Vibha Soni ji to present her vote of thanks. सेवितव्यो महावृक्षरु फल छाया समन्वितरु यदि देवाद फलम नास्ति छाया के निवार्यते. That is, one should serve a huge tree because he is endowed with fruit and shadow. If due to some misfortune it does not bear fruit, then no one can stop its shadow. A very good afternoon to all. I, Vibha Soni, student of MA first semester Sociology. On behalf of fellow participant, I am glad to express my vote of thanks. As we all know that saying thank you is a respectful way to show appreciation toward a person. But these words would be less for our today's speaker, Professor Raksha Singh ma'am. I would like to express my gratitude to ma'am for taking such an in-depth and comprehensive lecture on observation method and qualitative research. Ma'am, we are grateful for your dedication and willingness to share your knowledge and experience with us. Your expertise has undoubtedly enriched our understanding of observation method and qualitative research. Thank you so much all and have a wonderful day ahead. Thank you. So we are heading towards